Siliguri and Gangtok and the Merak Lake and Darjeeling. So my father was in the army, so that's one area that I've lived there, and it's one of the most beautiful places in India. Wonderful. So welcome. I think you are also one of the awardees, so looking forward to seeing you on the stage. Wonderful. There we have another Namaskar. Namaste. नमस्कार जी, मैं वैसे ही नमस्कार कर रहा था, मुझे लगा कि थोड़ा एक कनेक्शन लोगों के साथ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा. And then we should start off. Hello sir. Wonderful. I love the way. सुनेश जी कहाँ से? मैं बॉम्बे से. And okay. The movie of Leela the Soulmate. Wonderful. Excellent. Absolutely. First VFX. Wonderful. Can we please sit down? And I think, ladies and gentlemen, we have one of the stars of yesteryears, and of course, a personality even today. Zordar Taliyan, Zina ji ke liye. Zina Tamam is here. Such a pleasure having you here, ma'am. And it's an honor that you are part of the NRI Achievers Awards here. And let's get on with the award ceremony. Let's go. Yes, definitely. Let's move ahead. And Aman ask brand and trophies of the NRI Achievers. क्या कहना चाहिए आज फिल्म एंड टीवी का एक नया मैगजीन लॉन्च हो रहा है, इस पर आप बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं. बहुत बधाई हो और जो मैगजीन लॉन्च है उसके लिए बहुत शुभकामनाएं. मैम, बॉलीवुड की खबर अगर आप पढ़ना चाहें तो ऐसा कौन सा अखबार और या न्यूज़ हो आप देखना चाहें? आप हर रोज़ जो होता है बॉलीवुड की जो भी खबरें हैं, तो आप कौन से अखबार के द्वारा आप पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं? समय कहाँ है, इतना बिजी है, लेकिन क्योंकि जब भी मौका मिलता है देख लेते हैं. तो आज आपको अवार्ड मिलने जा रहा है यहाँ पर? जी, मैं बधाइयाँ देने आई हूँ, यहाँ पर शुभकामनाएं देने आई हूँ, कंग्रेचुलेशन बोलने आई हूँ. मैम, एक सवाल है, जिस तरह से फातिमा सना शेख को ट्रोल किया गया सोशल मीडिया में, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? उनके ड्रेस को लेके काफ़ी कमेंट किए जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपना सोच है, ये इसके बारे में क्या कहूँ मैं. मैडम, एक क्विक बाइट.
to our beautiful city of Mumbai. I am just so happy and honored and privileged to be here this evening because we are celebrating the achievements of all our wonderful Indian people all over the globe. And I have to commend Mr. Ravi Kumar for starting this because I think it's high time. I mean, our people are just so talented. They have so much perseverance in whatever they set out to do. They're knowledgeable, they are intelligent, they are warm, they're just wonderful Indians. I am just so happy and proud, and I congratulate all of you, and I congratulate Mr. Ravi Kumar and Marshals for having this event and for having me here. And I'd like to thank Mr. Rajarina Chopra for making me part of this evening. So I'm not going to take too long because I know everybody wants to get their award. So just have a great evening. Thank you so much. Wonderful. Just one little question, ma'am. I think we did mention the fact that you kind of changed cinema in a certain way. So do you think that really happened, or the movies that came along were something that happened naturally, or did you make an effort to do the kind of films that you did? I was actually accepted in a film called Hare Rama Hare Krishna, right, where she is a good bad girl. And I think that when I was accepted in that particular character, producers and directors then wrote roles for me that were, the good bad girl. She was naughty, she was bad, she was on the edge, but there was a reason for it. Whether it was Roti Kapra Makan, whether it was Hira Panna, whether it was, the wife who may have been unfaithful to her husband. There were just a whole lot of films that were written for me at the time. And I was quite fortunate to be in the right place at the right time. Absolutely, and you did brilliant work. I think Zordar Talia for Zina Chidi. Absolutely brilliant work. Thank you so much for taking time out. Would you like to say something more? Oh no, just have a great evening. I'm just happy to be here. Thanks. Wonderful. So I would request you to please go back on your seat, and we shall call you back again. Please get your hands together for the one and only Zina Kumar. Ma'am, I think they need a picture. They need a picture with you. Yeah, we'll be a little later. Yes, and thank you. Let's move on. Yes, definitely. Good evening. Definitely, we are extremely proud of these wonderful Indians who are referred as NRIs, but to me they are ambassadors of India. You represent our great nation. You represent our culture. You're the ones spreading the fragrance, affection, love of India. We are proud of you. You're also the ambassadors of the country where you live. Although you're Indian, but you are somebody who's making the country where you are now living, where you are now making a livelihood, that country proud as well, because all that resonates and comes back here, because in various countries where our wonderful Indians, referred as NRIs, non-resident Indians, live, they have progressed so well, they have done so well in every country that we feel proud to be calling them as our ambassadors. And I'd like to congratulate Ravi Kumar for starting this award, and I'd like to congratulate everybody else who's joined in this award, marshals and all of you. My congratulations to Raj Chopra for presenting this, and my best wishes to all of them who are going to be honored tonight. Thank you very much. And Aman, ये क्या मतलब है? बुलाते हो बोलते नीचे जाके बैठ जाओ। जब हम आ गए, हम आ गए। क्यों राकेश जी? I've arrived.
But I mean, this is a personal question. Everybody knows you as the Batman. वो dialogue में भी था. So what I need to know is कि क्या ये dialogue आपको specially दिया गया था, आपने खुद बनाया और it just happened? तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मैं तो वहाँ पर बैठकर फैन मोमेंट था जब जीनत जी स्टेज पर थी, जीनत जी स्पीच दे रही थी, बात कर रही थी, तो उसके बाद आपने कहा कि मैम आप जाइए बैठिए। मैं ये क्या हुआ, हम तो और देखना चाहते थे और सुनना चाहते थे जीनत जी को। I'm absolutely delighted and honored to be part of the same function or sharing the podium or the stage with the legendary Zeenat Aman that I have been a great fan of, and I've had the great opportunity and pleasure of working together. It's a coincidence that Rakesh Bedi, my dear friend, and I worked together in a movie that was shot in Russia, where Zeenat ji was the star and Rakesh and me were the rising actors. Rakesh, you remember my friend? And it is truly, truly fantastic, seeing the legend right here with us. Well, you are a legend in your own way, sir. Because when you just say Batman, it just happens, right? Yes. So a big round of applause for this the man with the golden heart. Zordar Taaliyan, sir. I'm not sending you back. I'm sending you back because I'm going to call you back again, for sure. Paka. Zordar Taaliyan के लिए. Thank you, sir. क्योंकि ये इन्होंने कुछ देर पहले यहाँ पर कहा कि ये वाकई जो आज हिंदुस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, इसके पायनियर ये हैं। जब इन्होंने आज से 10 साल पहले वो शुरू किया था, कोई भी आओ हंसा के दिखाओ, उसका मैं भी हिस्सा था और हमने उस समय बहुत साथ दिया था बलदेव जी का कि कॉमेडी जो है फोर फ्रंट पे आनी चाहिए। और आज बड़ी खुशी की बात है कि कॉमेडी हमारे देश में फोर फ्रंट पे आ गई है। एक ज़माने में स्टैंड अप कॉमेडी को या कॉमेडियंस को थोड़ा सा पीछे रखा जाता था, लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। अब कॉमेडियन हमेशा आगे ही रहते हैं। गुलशन जी, आपको तकलीफ नहीं हुई सुनकर? बहुत बहुत बधाई हो सबको, और खास तौर पे मेरे दोस्त रवि कुमार को जो मेरा जो ग्रुप है इसके हिस्से हैं। जब मेरे पास आए कि ये अवार्ड करना चाहते हैं तो बहुत खुशी हुई। मुझे एक बार किसी ने पूछा था कि NRI का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से तो यही है कि नहीं रहता इधर, कहीं बाहर ही रहता है। लेकिन आजकल इतनी तकलीफ हो रही है बाहर के मुल्कों को, हमारे जो NRI वहां गए हुए हैं, कि आप देखिए ट्रम्प साहब को भी तकलीफ होनी शुरू हो गई है कि हमारे लोग इतना ज्यादा अच्छा काम क्यों कर रहे हैं उनके देश में जाकर। भाई हम लोग क्या करें, हम लोग हैं ही इतने इंटेलिजेंट, हम लोग हैं ही इतने मेहनती, हम लोग हैं ही इतने अपना काम इतनी लगन से करते हैं कि जिस भी देश में जाए, आज मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी एक सिंगल देश ऐसा नहीं है जहां पर हिंदुस्तानी ने अपना नाम नहीं कमाया, अपना झंडा नहीं गाड़ा। ये एक बहुत बड़े प्राइड की बात है हमारे देश के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि ये अवार्ड हो रहा है और मैं इसका किसी तरह से हिस्सा बना हूँ। और बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो इन्होंने एक मशाल जलाई है ये चलती रहे, और हर साल इसी तरह से इनका जो ये रवि कुमार जी हैं, इनके जो साथी हैं, ये सब मिलकर चुन के NRIs को लाते रहें। बल्कि मैं कहूँगा कि उनके देशों में भी जाएं और वहाँ जाकर उनको चुनें और उनके देश में जहाँ उन्होंने काम किया है उस देश के लोगों के सामने उनको सम्मानित करें। ये मेरी प्रार्थना है, ये मैं चाहता हूँ। Thank you sir, thank you so much. EP इस तरह के लोग नहीं हुआ करते थे। आजकल ये लोग आके सर पे बैठ जाते हैं और कई दफ़ा आपको ये भी सिखाते हैं कि आपको एक्टिंग कैसे की जाए। बड़ी तकलीफ होती है जब कोई 22 साल की लड़की आपको कहती है कि सर यहाँ पर पॉज लीजिए, यहाँ पर हंसिए, यहाँ पर लुक कीजिए। तो हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, ये जो है जिंदगी जो हमारा सीरियल था, विच इज़ आइकॉनिक सीरियल इन इंडिया एंड ऑल्सो फॉर ऑल NRIs अब्रॉड, कि उसमें कोई EP नाम की इस तरह की चीज़ नहीं हुआ करती थी। हम लोग, राइटर अपने दिल से लिखता था, डायरेक्टर अपने दिल से उसको डायरेक्ट करता था, सारे एक्टर्स में अपने दिल से कंट्रीब्यूट करते थे, तो एक क्लासिक चीज़ बनती थी। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे टू मनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ वाली बात है। और गुलशन जी, मुझे वो किस्सा याद आ गया। एक फिल्म हम कर रहे थे सोनी मेहवाल, जैसे गुलशन ने कहा अभी, तो जब हम वहाँ गए रशिया में,
तो उस फिल्म में जीनत जी हीरोइन थी, गुलशन जी विलन थे, मैं कॉमेडियन था। तो इत्तेफाक की बात ऐसी हुई कि जिस दिन जीनत जी जा रही थी रशिया से, उस दिन मैं और गुलशन पहुंचे थे। तो हमको जो रूम मिला था वो वही रूम था जिसमें जीनत जी ठहरी हुई थी होटल में। तो जब मैं और जीनत जी उसमें अकेली थी, क्योंकि वो स्टार थी, हम लोग उस वक्त स्ट्रगलिंग एक्टर थे, अपकमिंग एक्टर थे, तो मेरे को और गुलशन को वो रूम दे दिया गया। अब उस रूम में 2 बेड थे, एक इधर एक राइट एक लेफ्ट। तो अब सवाल दोनों के मन में ये था कि जब जीनत जी यहाँ रही 10 दिन, तो कौन से बेड पे सोई। तो मैं और गुलशन अलग अलग अपने अपने तरीके से इस बात का पता लगाने, जासूसी करने लगे। कभी असिस्टेंट पे पूछ, कभी डायरेक्टर से पूछ के यार जीनत जी किस बेड पे सोती थी। तो मालूम ये पड़ा कि राइट वाले बेड पे सोती थी। तो जब हम रूम में पहली बार एंटर किए रात को, तो मेरा और गुलशन का बहुत झगड़ा हुआ, मारा मारी हुई कि मैं इस पे सोऊंगा। और ये विलन है, ये जीत गया मुझसे। लेकिन आई एम श्योर कि नींद मुझे अच्छी आई। Thank you so much. Thank you. So I'll be taking this award on her behalf. And she's from America. That was wrong. That's not Canada. I'm from Canada. Thank you. Okay, congratulations.
Kumar and also his entire team for doing this wonderful, having this platform for all of us who are obviously living really far away from this country, and also for giving us a chance to be able to showcase and be, of course, be recognized for this award. And there were a few lines I had actually written, but I wasn't sure I was going to be doing any announcements at the moment. I've got the lines over there. Basically, सबसे पहले तो मैं नमस्कार आदाब और सत श्री अकाल कहना भूल गई सबको. Thank you so much, Aman, for we've had a chance to work in a film together. हमने एक पंजाबी फिल्म में एक साथ काम किया था, and I do always remember that. लाख परदेसी हो ये, so I don't know if you guys have seen it. I've had a wonderful opportunity to work with him. He's a great human being as well as a great actor, and to be standing right here next to the legend of India. Oh my God! I mean, I'm just so impressed. I'm so happy and very much honored to be here today, as well as distribution. Thank you to the NRI Achievers Award for getting this award. It's an honor to receive an award from you, ma'am. You both are doing really great. Well, my film is currently getting screened at various Indian international film festivals, and it's basically a message-oriented film on terrorism, which is a global topic nowadays and which is always misinterpreted. So we're trying to convey the real message about jihad. So I hope you all love the movie and you worked really hard. Thank you to my producer Haider Kazmi, he's over here right now, for giving me this chance to work in this movie and for having the confidence in me. My director Rakesh sir, of course my parents, my family, for having the confidence and giving me the support to achieve my dreams. GMM TV और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए नवाजा है, और बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल आप लोग का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे ग्लोबल के ऊपर, मैं यही आपसे मांगूंगा। ऑलरेडी आपको पहले भी अवार्ड से नवाजा गया अवार्ड से, तो क्या कहना चाहिए, बैक टू बैक अवार्ड से नवाजा जा रहा है आपको? क्या बोलूँगा, ये तो हमारी गुरु माँ की कृपा है कि ऐसा आशीर्वाद मिलते जा रहा है उनकी तरफ से, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है और अच्छा काम करने के लिए, और मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जो हमें ये चीज़ दे रहे हैं। आगे क्या करने वाले हैं जो आपने जिसके रोल मॉडल के आप साबित हो गए, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के लगभग 500 होर्डिंग्स है ऑल ओवर मुंबई प्राइमरी लोकेशंस पे, और जिसको भी जब भी कोई भी न्यू कमर्स को ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आइए। वी आर मोस्ट वेलकम विद फुल फ्लैट टीम, मीडिया प्लानर्स, एग्जीक्यूटिव्स सब हमारे। एनी एडवाइस टू न्यू कमर हू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? मेहनत करनी पड़ेगी, लगे रहो, डटे रहो, तकलीफ आएगी, सहन करो, फेस करो। आज के दौर में अवार्डों की बात आ गई है, इस अवार्ड को आप कितना अलग मानते हैं? हर अवार्ड एक अलग चैलेंज है, अलग एक चैलेंज लेके आता है, और हर अवार्ड की एक नई चीज़ आती है, तो मैं भी उसमें देखता हूँ।
किसी की हिम्मत हमको बार बार बुलाए, हम अपनी मर्जी से आएंगे। Such a pleasure and such a pleasure and honor, when looking at the wonderful achievements of the NRIs, Indians that we are absolutely proud of. Thank you very much, Amar. All the very best to the winners and all the very best to Ravi Kumar and the entire team. Thank you. We're going to call you back, sir. So please. Okay. ये वो भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर न सिर्फ अपने लिए कुछ अचीव किया है, बल्कि भारतवर्ष को, अपने देश को गौरव प्रदान किया है। क्योंकि लोग इन्हें NRI कहते हैं, मैं इन्हें इंडिया के एम्बेसडर्स कहता हूँ, क्योंकि हमारे देश से जाकर जिस प्रकार से ये वहाँ रहेंगे, जिस प्रकार से ये वहाँ पर व्यवहार करेंगे, जिस प्रकार से ये लोग अचीवमेंट्स करेंगे, उसी से हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन होगा। देश के कल्चर की, देश की अच्छी चीज़ों की खुशबू NRIs फैला रहे हैं। मैं बहुत प्राउड हूँ कि अलग अलग कंट्रीज़ में NRIs ने भारत देश को गर्व दिया, भारत देश का नाम रोशन किया है। Therefore, I am very happy to be here this evening, to give away the awards to the NRI achievers. Congratulations and best wishes to everybody supporting this. Thank you. सर, आपकी कोई अपकमिंग फिल्म? मेरी फिल्म आ रही है बहन होगी तेरी, आज लगी। क्या नाम है पिक्चर का? बहन होगी तेरी। आज तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको अभी तक? मेरे काम का फिल्म बहन होगी तेरी में बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि रिव्यूज़ में भी बहुत अच्छा लिखा है और फिल्म बनाने वाले तो तारीफ़ किए जा रहे हैं। मैं जब फिल्म की स्क्रीनिंग देखने गया था तो डायरेक्टर ने कहा कि सर आप सेकंड हाफ में देखिए, जब आप आते हैं तो पिक्चर क्या हो जाती है। फिल्म के प्रोड्यूसर टोनी डिसूजा ने कहा कि फिल्म हमारी एकदम अलग ही शेप ले लेती है जब आप आते हैं, और ऑडियंस का भी वैसा ही रिएक्शन है। मुझे बहुत खुशी है कि फिल्म बहन होगी तेरी में बहुत सराहा जा रहा है। रवि कुमार जी आइए। हेलो सर, जैसे कि ना सर, महिलाओं को काफ़ी ट्रोल किया जाता है उनके कपड़ों को लेकर, जैसे कि आज फातिमा सना शेख को भी उनको ट्रोल किया गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? छोटे कपड़े पहनना क्या गलत बात है? मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में, अनरिलेटेड है। इस वक्त तो NRI अचीवर्स की बात हो रही है, NRI अचीवर्स जिन्होंने देश को संभाला। ट्रोल करना क्या, गालियाँ देना, मुझे क्या पता। इररिलेवेंट प्लीज। उसको 5 साल पूरे हुए तो आपकी तरफ से बधाई। समाचार प्लस को 5 साल पूरे हुए आपकी तरफ से अगर बधाई दे दें सर, कोई इजी। All the best to Samachar Plus on completing 5 years.
मैं बहुत ही खुश हूँ, रियली वेरी हैप्पी एंड आई लाइक टू थैंक्स राज सर एंड रवि सर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ये जो NRI अचीवमेंट अवार्ड है इट्स रियली वेरी ग्रेट टू नोस अबाउट इट। अवार्ड मिलना कितना इम्पोर्टेंट होता है? अवार्ड में इट्स लाइक अ ऑनर टू गेट है और सबसे बड़ी ऑनर जब है कि राकेश बेदी सर एंड गुलशन ग्रोवर सर दें एंड द बिग थैंक्स टू जीनत मैम because when I was so small I asked my mom who's that actress and I like to meet her and today I already meet her, so it's really very pleasure and it's very kind of me to know that. डेब्यू करने जा रहे हैं आप बॉलीवुड में, क्या कहना चाहेंगे? I just need a blessing कि this is my first debut movie Leela the Soulmate. I need a blessing for that and just want to know about the movie. This is a very different kind of movie. This is the first full VFX Bollywood movie, so I just want to know about it. Thank you so much. Very good. Congratulations getting a big award. Thank you very much. ये है NRI Paramount Achievers Award. ये है कि हम लोग जो भी काम करते हैं पूरी दुनिया में पता चल जाता है, तो वहाँ से भी लोग हमको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एंड आई एक्सेप्ट दिस अवार्ड. थैंक यू वेरी मच. Ma'am, now you become a very successful entrepreneur, women entrepreneur. What do you want to say regarding that? नारी शक्ति जिंदाबाद. कहना चाहती हूँ कि अगर नारी कुछ ठान ले तो कुछ भी कर सकती है, सो प्लीज़ आप अपने आप के लिए कुछ कीजिए और ज़रूर से कुछ कीजिए. Ma'am, in social media, yesterday Fatima Sana Sheikh, if you see the Deepika, they trolled because of dress up. What do you want to say? They do vulgar comment on social media, this kind of thing. It's their choice, their life. Why bother? Thank you so much. Thank you. Award Mila, you get the award. What do you want to say? Well, I'm very glad and excited to win this award. This is my very first Indian award for my upcoming film. Yeah, sorry. क्या कहना चाहेंगे आज अवार्ड मिला है मैम आपको? Well, as I said, I'm very glad and excited to win this very first Indian award that I received. This is for the upcoming film that I have, which is called Jihad. It's currently getting screened at the Indian International Film Festivals at the various platforms, and it's yet to be released theatrically worldwide by the end of this year, I guess. Most probably, inshallah. So yes, we received this award, and I would like to thank the NRI Achievers Award for getting this award. It was a great honor receiving this award from Mrs. Zeenat Aman ji. She's a legend, and I would like to thank everybody. Thank you. You're trying Bollywood? Oh yes, of course. I mean, I'm a fan of Bollywood, and Bollywood, I think, it's an amazing industry which has been doing really well across the globe, overseas, and there are fans crazily across the globe for Bollywood. So I think, obviously. Did you learn Hindi? Yes, my mother tongue is actually Urdu, so I can speak Hindi, Urdu, English. ये आप क्या सुनना चाहेंगे मुझसे? Can you tell us about regarding your dress? It looks very beautiful and you are also so much hot. What do you want to say? Well, this dress is designed by the very famous designer Habibullah from Dubai. So he basically designed this dress for me. And thank you for your compliments. So you're giving competition now to Katrina Kaif to Priyanka Chopra now in Bollywood. Well, I'm not really sure what to say on that, but I think they're an amazing talent to look out for. They are two personalities that I look up to. They've been doing extremely well across the globe, and I'm just focusing on my work right now. Thank you so much. Thank you. जी क्या थॉट है आपके, क्या टेक? नहीं, देखिए, थॉट तो अपने आप में बड़ा अच्छा है कि बाहर के देशों से ये लोग ऐसे लोग चुन के लाए हैं जो अवार्ड के काबिल हैं, जिन्हें नवाजा जाए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बाहर जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है अपने काम के ज़रिए. तो ऐसे लोग को ढूंढ कर लाना, उन्हें अवार्ड देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. और क्या होता है कि ग्लैमर का अवार्ड करना बड़ा आसान काम होता है कि आप किसी फिल्म स्टार को बुला के अवार्ड दे दीजिए, लेकिन इस तरह के अवार्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. सर, आपने कई सारी फिल्म की है और आपने की है जो काफ़ी हिट रहा, तो क्या आप नए कलाकारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही मैसेज देता हूँ हमेशा कि एक कलाकार को अपनी कला को निखारने के लिए थिएटर भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक पहलवान अखाड़े में जाता है और एक सिंगर अपना रियाज़ करता है अपने घर पे, तो एक्टर कहाँ जाएगा? एक्टर को भी तो रियाज़ करना चाहिए अपनी कला को निखारने के लिए. उसके लिए एक ही ज़रिया है, वो है थिएटर.
तो वो करना चाहिए, और ताकि आपको पता चलता रहे कि आप कितने पानी में हैं। राकेश सर, आजकल आज कई अवार्ड हो चुके, तो अवार्ड की मान्यता कम हो जाएगी, कई सारे अवार्ड है, अर्जुन पत्नी अवार्ड है। नहीं देखिए, अब क्या पॉपुलेशन में तो बढ़ रही है तो अगर पहले अवार्ड कम होते थे क्योंकि तब मीडिया इतना भी फैला हुआ नहीं था, अभी फैलाव कितना ज़्यादा है मीडिया का, कितने पहले एक चैनल होता था, अब हज़ारों चैनल हैं और हर क्षेत्र में तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अवार्ड भी बढ़ गए क्योंकि लोग काम करने वाले लोग बढ़ गए, काम देखने वाले लोग बढ़ गए, ऑडियंस बढ़ गई, हर टेलीविज़न का जो फैलाव है वो बढ़ गया, तो जाहिर है अवार्ड बढ़ेंगे ना फिर। सर रीमा जी की क्लिप यहाँ पे शेयर की गई, आपने उनके साथ बहुत काम किया, जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैंने बहुत मिस किया उनको। जिस दिन उनकी डेथ हुई मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरा जो सीरियल था श्रीमान श्रीमती, उसके अंदर बहुत हमने काम किया और 3-4 साल लगातार काम किया, और बड़ी अच्छी को एक्टर थी, बहुत अच्छी कलाकार थी, और इसके अलावा फिल्मों में भी, मराठी सिनेमा में, मराठी स्टेज पे बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया। और सर आखिरी सवाल है, महिलाओं को काफ़ी ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया में उनके ड्रेस को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये भद्दे भद्दे गालियाँ दी जाती है। ये मुझे लगता है कि हमारा समाज जो है वो, उसका जो एक मेंटली जो दायरा है वो शायद इतना बड़ा नहीं हो पा रहा है। हम लोग क्यों इस तरह से महिलाओं को एक चीज़ समझते हैं, या एक जिसको बोलते हैं एक आइटम समझते हैं जिसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। महिलाएं हमारे समाज का हिस्सा हैं, अगर महिलाएं ना हों तो मतलब जो आदमी है, मर्द हैं, वो भी नहीं हो सकते। तो महिलाएं हमारे समाज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट क्या, आधा हिस्सा है समाज का, तो उनका शोषण या उनका किसी तरह से उनका दुरुपयोग करना एक बहुत ख़राब बात है। मुझे जब मैं रोज़ पेपर में पढ़ता हूँ कि कहीं रेप हुआ है, कहीं बलात्कार हुआ है, कहीं तिरस्कार हुआ है, मुझे बहुत दुख होता है, हर रोज़ दुख होता है। अवार्ड कितना प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के अवार्ड में? Yes, I'm very thankful and grateful for getting this award. It's a new initiative, NRI Achiever Awards, which is, I think, a very good initiative. There's so many Indians who are settled abroad and doing so well in their lives, and at the same time, वो इंडिया का नाम भी रोशन कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी जाएं, जो भी करें, रूप रंग तो उनका हिंदुस्तानी ही रहेगा। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इस अवार्ड को आज पाकर। आपने भारत का नाम विदेशों में भी अच्छा किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा यहाँ जो जॉब है वो कुछ ऐसा ही है, बेल्जियम और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको बढ़ाने का। तो उसके हिसाब से हाँ, इंडिया का नाम बेल्जियम में बहुत रोशन हुआ पीके मूवी के साथ, जो बॉलीवुड की पिक्चर शूट हुई थी ब्रूज में, जो हमारा बेल्जियन कॉन्सुलेट का ही प्रोजेक्ट था राजकुमार हिरानी जी के साथ। तो हाँ, इंडिया का नाम बेल्जियम में बहुत रोशन हुआ है, और हमने बेल्जियम का नाम भी बहुत इंडिया में रोशन किया है, अलग अलग काम करके। थैंक यू सो मच।